Hello students, I am Asma Naz and welcome to the Department of Bioinformatics and Computational Biology. Today we will dig into protein structure visualization. The learning outcomes of today's lab session will be, first you will get to know about how to download a 3D structure of the target protein from the RCSB PDB repository. Secondly, you will learn to open PyMol and load a downloaded PDB file in it. And lastly, you will learn to know about the PyMol interface. Before getting into downloading section, let's get an idea about what is RCSB PDB repository. RCSB PDB is abbreviated for Research Collaboratory Structural Bioinformatics Protein Data Bank. This database has a collection of experimentally determined 3D structures of macromolecules such as proteins and nucleic acids and associated small molecules like drugs. It serves as a primary resource for researchers in the field of structural bioinformatics or structural biology. The data in the RCSB PDB repository basically acquired through different techniques like X-ray crystallography, nuclear magnetic resonance, spectrometry and cryo-electron microscopy. The importance of PDB in the various fields of structural biology is that PDB has 3D structures. So PDB में जब हमारे पास 3D structures available होते हैं तो उसकी वजह से हम जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उन प्रोटीन्स की उसको हम बेसिकली एसोसिएट करके हम कोई फंक्शंस रिजल्टिंग फंक्शंस हम उसमें से एसोसिएट करके निकालते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी ड्रग का स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होता है और हमारे पास अवेलेबल प्रोटीन का स्ट्रक्चर पीडीबी में होता है तो हम उन दोनों को डॉकिंग करते हैं या उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने के बाद उसका जो फंक्शन है उस ड्रग का एक स्पेसिफिक प्रोटीन के अगेंस्ट हम उसको एस्टिमेट करते हैं. सो इट मीन्स दैट पीडीबी इज एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर स्टडीइंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, understanding their functions and exploring the relationships between structure, sequence and biological activity. It plays a very important or vital role in advancing research, drug discovery and structural biology education. We will be using PyMol for visualization section. So let's look into what is PyMol. PyMol बेसिकली एक ओपन सोर्स मॉडल विजुलाइजेशन टूल है जो कि वाइडली यूज़ होता है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में. द पाई वर्ड इन इट्स नेम demonstrate that this specific interface is coded in Python programming language. PyMol की जो एप्लीकेशन है ये यूजर्स हैं स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में. फर्स्ट उसका है कि मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन. हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो हम इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं इसके PyMol व्यूअर विंडो में. सेकेंडली हम उसके जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज कर सकते हैं एंड उसके अलावा हम प्रोटीन स्ट्रक्चर का कंपैरिजन भी कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर डॉकिंग भी कर सकते हैं. अब हमें एक स्ट्रक्चर डाउनलोड करना है फ्रॉम RCSB PDB repository. So for that reason, first you have to access the RCSB PDB and then download a specific protein structure. So इस सब के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. उन स्टेप्स में फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले आपको एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है. ठीक है, वो या तो क्रोम हो सकता है या फिर फायरफॉक्स है. तो आपने जो सर्च बार है उसमें आपने URL ऐड कर देना है. URL लिंक कौन सा है? www.rcsb.org. ठीक है, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द RCSB PDB होम पेज. RCSB PDB होम पेज कुछ इस तरह से नज़र आता है. ठीक, तो उसके ऊपर सर्च बार में आपको राइट साइड पे एक आपने वहाँ पे 4 लेटर कोड एक होता है प्रोटीन का. हर एक प्रोटीन का स्पेसिफिक यूनिक कोड होता है तो आपने वो ऐड कर देना है. यहाँ पे
उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद उसी स्पेसिफिक प्रोटीन का एक न्यू पेज आएगा और उस स्पेसिफिक प्रोटीन के जितने भी इम्पोर्टेंट डाटा है उससे रिलेटेड वो आपके पास उस न्यू पेज पे शो होगा। आफ्टर दैट at the top right corner you can see an option download files where you can click and then a sub menu will be shown or appeared in front of you। यहाँ पे आपने PDB फॉर्मेट पे क्लिक करना है बिकॉज आपने जो स्ट्रक्चर है वो PDB फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। तो आपने इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर है वो उस फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा जहाँ पे आपने उसका पाथ दिया होगा डाउनलोडिंग सेक्शन में। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4p1e एक एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल प्रोटीन ली है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे डाउनलोड करके डाउनलोड फाइल्स के बाद PDB फॉर्मेट में इसका डाउनलोड करूँगी तो मेरे पास 4p1e.pdb के नाम से एक डाउनलोड डायरेक्टरी में मेरे पास इसकी एक फाइल आ जाएगी। Now you have a PDB structure. Let's load that PDB file in PyMol and explore the interface. For loading PDB file in PyMol, first you have to launch PyMol by double clicking on its icon. आपने इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है, और ये आपके पास ओपन हो जाए। PyMol का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने खुलेगा। इसमें आपके पास सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। इसका इंटरफेस में दो एक्सटर्नल GUIs हैं। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक्सटर्नल GUI जो टॉप पे है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल GUI। एक्सटर्नल GUI में सबसे टॉप पे आपके पास मेन्यू बार होता है, ठीक है। मेन्यू बार में जो डिफरेंट फंक्शंस आपके पास अलग कैटेगरीज में रखे जाते हैं। और जो इंटरनल GUI है, इंटरनल GUI में आपके पास ऑब्जेक्ट पैनल होता है और माउस कंट्रोल एंड सिलेक्शन टूल हमारे आपके पास अवेलेबल होते हैं। ऑब्जेक्ट पैनल में फाइल, एडिट, बिल्ड, मूवी, डिस्प्ले, सेटिंग, सीन, माउस, विजर, प्लगइन एंड हेल्प, ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और इसके अलावा आपके पास एक्सटर्नल GUI में कमांड लाइन भी है। इस कमांड लाइन में आप डिफरेंट कमांड्स ऐड करके अपना जो 3D स्ट्रक्चर है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो बिल्कुल सेंट्रल एरिया है ये वाला, इसको कहते हैं पाइमोल व्यूअर विंडो। इसमें आपके पास मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो आप इसमें विजुलाइज करेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट पैनल है, ऑब्जेक्ट पैनल में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स में आपके पास A है, S, H, L and C. A is for action. It shows or it manipulates the 3D structure, and then S is for show, showing different components of the protein, and H is for hiding different components of the protein, and L is for labeling the residues and atoms of the protein, and C is for giving the or assigning the different colors to the protein. तो और सिलेक्शन टूल में जो बाकी तो आपके पास ये ऑप्शन है स्टॉप, प्ले। जब भी आप कोई मूवी, सपोज इसमें आपने कोई एक 3D स्ट्रक्चर का आपने एक मूवी बना ली है डिफरेंट सीन्स की, उसमें उसको आपने जब इसमें अपलोड कर देते हैं सेंट्रल व्यूअर विंडो में, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि उस मूवी को आप किसी भी पॉइंट पे स्टॉप कर सकते हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और स्टेप वाइज उसको देख भी सकते हैं। उसके अलावा S आपके पास जो सिलेक्शन टूल में ऑप्शन है, S इज़ यूज्ड फॉर शोइंग द सीक्वेंस। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपलोड नहीं किया, तो इस वजह से इसको हम अगर क्लिक करेंगे भी तो कुछ यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस आएगा नहीं। तो लेट्स लोड द 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन जो कि हमने डाउनलोड किया है, दैट इज़ 4p1e।
तो इसके लिए हम पहले जाएंगे फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन पे, एंड देन इट विल नेविगेट टू द डायरेक्टरी जहाँ पे हमारे पास हमारा 3D स्ट्रक्चर डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। ये है हमारा 3D स्ट्रक्चर, इसको हम क्लिक करके ओपन करेंगे। इट विल टेक सम टाइम जी। तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर पाइमोल व्यूअर विंडो में लोड हो चुका है। अब इसको हमने मैनिपुलेट करना है जिस तरीके के भी हमें स्ट्रक्चर चाहिए या इसके इमेजेस चाहिए। तो अब ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेड मार्क्स हैं, प्लस साइंस हैं, ठीक है, ये प्लस साइंस हैं। दीज आर बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दीज पर्पल बॉल्स आर आयोडाइंस और आयोडीन आयंस, ठीक है। ये समटाइम्स ऐसा होता है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए, यानी उसका 3D स्ट्रक्चर का जो एक पिक्चर या इमेज लेने के लिए उनको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रखना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन का एक जो उसका अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो कैप्चर हो सकता है। तो इस वजह से ये एसेंशियल पार्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल या सम स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसके साथ अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पे है आयोडीन है, इसके साथ अटैचमेंट हुई भी है। तो ये बेसिकली उसको स्टैटिक पोजीशन में रखने के लिए उस प्रोटीन को ऐड किए जाते हैं। समटाइम्स कोफैक्टर्स भी ऐड होते हैं, लेकिन वो जो कोफैक्टर्स हैं वो नॉन स्टैंडर्ड रेजिड्यूज में नहीं आते, उसको हम एज अ प्रोटीन पार्ट कंसिडर करते हैं, तो उसको हम रिमूव नहीं करते। जो हमारे पास जस्ट नॉन स्टैंडर्ड रेजिड्यूज होते हैं हम उनको रिमूव करते हैं। तो फॉर रिमूवल ऑफ दीज नॉन स्टैंडर्ड रेजिड्यूज वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एस part in the selection tool and now you can see the sequence of the protein, जो कि ग्रीन में जो यहाँ पे आपको विजुलाइज हो रहा है ग्रीन कलर में, ये सारा अल्फा एंड बीटा शीट्स हैं, ठीक है, एंड लूप्स हैं। अल्फा शीट्स आर दीज, ये जो एरोज आपको नज़र आ रहे हैं ये अल्फा शीट्स हैं, और जो हेलिसेस नज़र आ रहे हैं जिस तरह से ये हेलिक्स सा बना हुआ है, ठीक है, कॉइल फॉर्म में, ये आपके पास अल्फा हेलिसेस हैं, ठीक है। और जो बीच में जो लाइंस आपको लूप्स से नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये इनको कहते हैं लूप। तो ये आपके पास ऊपर सारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है, और ये जो पर्पल कलर यहाँ पे आप जैसे विजुलाइज कर सकते हैं कि पर्पल कलर आयोडीन को दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आयोडीन की हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो प्लस साइन आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, और स्टेरिक है ये बेसिकली, ठीक है, तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे आपको वो रेड कलर में 0 0 शो हो रहा है, तो इट मीन्स कि ऑल दीज आर नॉन स्टैंडर्ड रेजिड्यूज। तो फॉर रिमूविंग दीज नॉन स्टैंडर्ड रेजिड्यूज वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दिस सीक्वेंस बार, ठीक है, यहाँ से आपने इस तरह से सेलेक्ट कर लेने हैं। फॉर सेलेक्टिंग दीज रेजिड्यूज आपने क्या करना है कि इन पे क्लिक करना है, ठीक है, माउस से, यानी आपने इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक एंड देन ड्रैग, ठीक है, राइट क्लिक करना है एंड देन ड्रैग। उससे क्या होगा कि आपके नीचे आप देख भी रहे हैं कि साथ में सिलेक्टेड हो चुके हैं। देखें ये यहाँ पे अगर जूम करके देखें तो ये आपको जो इसकी बाउंड्री है वो सिलेक्टेड नज़र आ रही है। तो अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से सिलेक्शन, अब यहाँ पे देखें जैसे ही आपने अपना जो 3D स्ट्रक्चर है उसको लोड किया तो आपके पास यहाँ आ गया वो, ठीक है, और यहाँ पे जो आपने अभी जो सिलेक्शन की है वो आ गई। इस सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए आप सेल पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप कर देंगे एक्शन पे जाके रिमूव एटम्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर क्लीन हो गया। और इसके अलावा माउस से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, राइट क्लिक से आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इसकी प्लेसमेंट भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द स्क्रॉल बटन, ठीक है, उसको क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं इसको। आप इसी तरीके से आप शो ऑप्शन पे जाके तो आप इसके डिफरेंट तरीके से इस 3D स्ट्रक्चर को शो भी कर सकते हैं। शो एज लिकरिक किया तो आपके पास ये देखें लिकरिक फॉर्म में आ गया है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इसी लिकरिक को हाइड करना है तो आप क्या करेंगे कि एज सेक्शन में जाएंगे एंड एज में आप हाइड लिकरिक कर देंगे तो वो आपका हाइड हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लैब सेशन।
आप कोशिश करें कि आप इसको ट्राई करें एंड एक्सप्लोर करेंगे, तो इससे आपको इसके फीचर्स का एक्सप्लोर करने में हेल्प होगी और आप ज़्यादा इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू।